Now, dear students, today I am going to start a new chapter of mathematics, that is chapter number 4, quadratic equations. Quadratic equations. So, as you have read in class 8 as well as in class 9, that what is quadratic equation? The quadratic equation is a type of polynomial which is having a degree of 2, a highest degree of 2, having a highest degree of 2. So that is termed as the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैं कुछ पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पॉलिनोमियल्स आर व्हाट? पॉलिनोमियल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विद द वेरियस ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स अलोंग विद द वेरियस ऑपरेशंस। ओके, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 1, इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 1। सपोज दैट फॉर एग्जांपल 5x plus 3, so that is linear polynomial. That is linear polynomial. It is in this polynomial the power of the x is 1. The power of the x is 1. And now second one is that is quadratic polynomial. So what is quadratic polynomial? Quadratic polynomial is a type of polynomial which is having a higher degree of 2. For example, 2x square plus 4x plus 1, or you can say 5x square plus 9. These two are the examples of the quadratic polynomial because they are having a highest degree of 2. We have to look for the highest degree, and here the highest degree is 2. So this implies that it means that it is a quadratic polynomial. ये क्या है हमारा? Quadratic polynomial है। And our third one is cubic polynomial. So as you have read in class 9 that the cubic polynomials are those polynomials which is having a highest degree of 3. It is having a highest degree of 3. For example, it may be the various examples of cubic polynomial are as follows. Suppose that 3x cube plus 4x square plus 9x plus 5 or whatever it may be. But you have to look for the highest degree. So the highest degree for the polynomial is, for the cubic polynomial is 3, and for the quadratic polynomial is 2. So in this chapter we have to read only the quadratic polynomial, that is quadratic equations. That is quadratic equation. We don't have to read about the linear polynomial because we have already studied in class 9 that what is linear polynomial, and in the class 9 we have also read that what is cubic polynomial. You have factorized them, and you had already find out the factors of the cubic polynomial in chapter 2nd of class 9 from exercise 2.5. And now in the class 10 we will start from the quadratic polynomials, and we have to factorize it with the help of the various methods. This chapter contains actually the factorization of quadratic polynomial with the help of various methods. With the help of various methods, okay. So with the help of various methods we have to factorize them. We have to factorize them. Now जस्ट वेट बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, 9:30 के बाद कॉल करना आप। Students, are you listening me? Yes, sir. Okay. Okay. So we have to read about the quadratic polynomial in this chapter. Now, first of all, we have to look the general expression for the quadratic polynomial or the quadratic equation. What is general expression, or you can say the standard form of quadratic equation or standard form of quadratic polynomial? You already know that the equation which is having a highest degree of 2 is termed as the quadratic polynomial. So the
is given by ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c, this is the general equation, or you can say the standard form of quadratic polynomial. In this equation we have seen that the highest degree is 2 as well as the highest degree is 1 also, but we have to look for the there is a value of there is a degree of 1 also, but we have to look for the highest degree, highest power, and the highest power is 2. So that is quadratic polynomial. Here the variable is x, only the x, and a, b, c are the constants. a, b, c are the constants. तो इतना आपको क्लियर हो गया कि a, b, c हमारे क्या है, constants हैं. ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें. नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कोई भी इक्वेशन हमको अगर दी गई है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी वी हैव टू अरेंज दैम अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री वी हैव टू अरेंज दैम. तो इज देयर एनी डाउट? ओके. So now we have, first of all, we will start from the exercise 4.1. Now check whether the following are quadratic equations or not. You have to check that whether the following given equations are quadratic equations or not. And to check whether they are the quadratic equations or not, first of all you have to check that whether in the given expression is there any degree of 2 or not. If in the given polynomial there is a degree of 2 and the highest degree is only 2, so that is the quadratic polynomial. First of all we have to solve it. So the first question, the first part of first question is x plus 1 to the whole power 2 is equals to 2 whole into x minus 3. So that is the first part of first question. We have to solve it. Now here it is x plus 1 to the whole power 2, and we have we have to use the formula a plus b to the whole power 2. ठीक है ना, ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह लग रहा है. किसकी तरह? a plus b to the whole power 2, यानी a plus b का होल स्क्वायर. और a plus b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a plus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है इस फॉर्मूले का. तो हम इसको इसी फॉर्म में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6. इधर भी 2x है, यहाँ भी 2x है, LHS से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. एंड नाउ द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6. ठीक है ना, ये माइनस 6 जो है जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो माइनस 6 LHS साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का 6 वैल्यू आ जाएगा. तो नाउ इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. क्या ये इक्वेशन इस जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है? आपको देखकर लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ 2 टर्म है और इसमें 3 टर्म है. तो ये इसके अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है. उसका रीज़न ये है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जाकर. ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे लिखेंगे हम? ध्यान से देखिएगा. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. यहाँ पर जो बीच में x का टर्म है, यानी देखिए x स्क्वायर है, वो भी x स्क्वायर है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ से. ठीक है भाई, x स्क्वायर के सामने आगे कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 लगा हुआ है. ठीक है, और c की वैल्यू 7 हो जाएगी, बट यहाँ x का टर्म नहीं अवेलेबल है. ठीक है, यानी जो b है हमारा वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है. b हमारा टर्म नहीं है, x का कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर. तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 7 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. भाई 0 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स करेंगे तो नॉर्मल सी बात है 0 मिलने वाला है. हमारी
कोई डाउट इसमें? सो इट इज आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमको यहीं से प्रूव हो गई थी, यहीं से देखने से पता लग गया था कि ये हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी जाकर। बट वी हैव अरेंज दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So we have given the same equation in such a format. So now we have to look for the question number part second of the same question, that is question number 1, second part. Now what is second part? Second part is of exercise 4.1. Okay. Question number 1. So now the second part is x square minus 2x equals to minus 2 whole into 3 minus x. माइनस 2 होल इंटू 3 माइनस एक्स, ये हमको दिया गया। अब इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। देन क्या होगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। अब हम इस पूरे डेटा को ट्रांसपोज कर लेंगे एक साइड, LHS साइड लेके आइए पूरा डेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये डाटा जो है वो माइनस का 6 से बजे ट्रांसपोज होगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ बी एक्स है, यहाँ माइनस 4x है, सी है, यहाँ 6 है, ठीक है, बिल्कुल उससे मैच कर रही है। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ए बी और सी की वैल्यू को मैं पूछता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज हैविंग द नो कोएफिशिएंट विद इट, ठीक है ना। तो हिडन यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, हिडन 1 होगा, एंड द वैल्यू फॉर द ए इज इक्वल्स टू 1, वेरी गुड, एंड द वैल्यू फॉर द बी इज प्लस 4 और माइनस 4, माइनस 4, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैल्यू फॉर द बी इज माइनस 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज, value for the C is 6. You have to just compare it. You have to just compare the obtained quadratic equation with the standard form of quadratic equation. Then you can easily get the value of A, B and C on comparing it. So the value for the C is equal to 6. These are the values of A, B and C. Okay, though it is not asked in the question, but I have given you some extra work for it. So now just solve question part number 3 by yourself. Just solve part number 3 by yourself right now.
those who are not able to solve it, okay, they can see on the board. I'm also going to solve this part, okay, for you all. So those who are not able to solve it have to look at the board. So now we have to solve the third part of first question. So the third part is x minus 2 whole into x plus 1 is equals to x minus 1 whole into x plus 3. Okay. So in this part there are two brackets on both sides, left hand side as well as on the right hand side, and we have to solve these two both brackets by multiplication. Okay, so these brackets have to solve with the help of product of brackets. So first of all, x into x plus 1, now minus 2 into x into x plus 1, and now minus 2 from here, minus 2 into x plus 1 is equals to x into, please mute your mic. So x into x plus 3 and now minus 1 into x plus 3. So in this way we have to solve both the brackets. So first of all, what will happen when x is multiplied with the x? Then it becomes x square. And now x into 1x minus 2 into x, that is minus 2x, and minus 2 into 1, that is minus 2. Students, please cooperate in this regard, otherwise I have to mute you all. Abhishek Chaurasia, please mute your mic. You have to unmute it when you have to ask something to me. So now x square plus x minus 2x minus 2, and in the same way you have to solve here. So that is x square plus 3x x square plus 3x minus x minus 3. ओके, तो आपने देखा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 है. ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बताओ हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. तो प्लस x माइनस 2x माइनस का x और माइनस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, दैट मीन्स प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे दोनों एलएचएस साइड सॉल्व हो गई, ये आ गया, एलएचएस साइड सॉल्व हो गई, ये आ गया. नाउ दोनों साइड आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट. भाई एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो गया. या तो दोनों साइड जब प्रेजेंट है तभी कट कर दीजिए, या इस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लीजिए. जब आप इस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. ठीक है ना, हमारे पास जो सीधा सीधा बचा है तो क्या बचा है, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2. ठीक, अब ये जो डाटा इस साइड आपके राइट हैंड साइड है, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x. ओके, माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो अब इसको जरा सॉल्व करिए. माइनस एक्स माइनस 2x, दैट इज माइनस का 3x. ओके, एंड माइनस 2 प्लस 3, दैट इज प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपने देखा कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1. हाईएस्ट डिग्री 1 है. ठीक है ना. हेयर इन दिस वी कैन राइट इट एज हेयर just listen to me carefully, very sincerely. Okay, we have to write some statement, so just listen to me. Here in this equation, the highest degree is
1. So it is not a. So it is not a quadratic polynomial, or you can write quadratic equation. Okay, so here it is. So it is not a quadratic polynomial or quadratic equation. So now first part is complete. Here third part is complete. Here are 8 parts are given in the question number 1. So from part number 4 to part number 8, you have to solve it by yourself. If you face any problem, any doubt, any query, any problem in any part, then you can ask me on WhatsApp. I will provide you the solution of it. So the remaining parts of question number 1 is homework for you all. Now we have to start from the question number 2. So just read question number 2 with me. If you want to note it, then you can take the screenshot of this question also. And now we will start from the question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equations. It means in the question number 2, some situations are given to us. And we have to frame the quadratic equation according to it. We have to frame quadratic equations according to it, according to the situations. There are 4 parts in the question number 2, and the same pattern we have to follow in question number 2. We have to frame the quadratic equations according to the given conditions. So first of all, read part number 1 of question number 2 with me. When the 5 minutes will remain, then I will take the attendance. Okay, but till then you all have to join the class. Now part number 1. The area of the rectangular plot is 528 meter square. The area of the rectangular plot is 528 meter square. So area of rectangular plot. First of all, we have to write the given things which is already given in the question. So it is given that area of rectangular plot is 528 meter square. Okay. We have to draw a simple diagram of it, that it is a rectangular plot and the dimensions and the sides and the vertex of the rectangular plot is A, B, C and D, and the area of the rectangular plot is 528 meter square. So now, what is the second thing given in the question? So the second thing is that the length of the plot is 1 more than twice its breadth. 1 more than twice its breadth. Okay. So let the breadth be x. Let the breadth be x मीटर. ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा? x मीटर हो जाएगा. यानी कि ये अगर हम बात करते हैं तो ब्रेथ भी x मीटर and the length be so for the length it is given that the length of the plot is 1 more than twice its breadth. 1 more than twice its breadth. It means twice its breadth means 2 into x. Breadth कितना है?
x है, तो इट मीन्स 2 into x एंड 1 मोर अगर बोला गया है तो हम क्या कर देंगे +1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि लेंथ के बारे में कंडीशन गिवन है कि लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड 1 मोर। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब हो गया 2x एंड 1 मोर का मतलब हो गया +1। तो हमारी लेंथ आ गई, लेंथ हो गई हमारी 2x + 1 और ब्रेथ हो गई हमारी x। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 528 और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। सो लेंथ कितना गिवन है 2x + 1 होल इंटू x इक्वल टू 528। क्लियर? सो अब क्या करना है, अब जो है वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा, x का मल्टीप्लाई करिए 2x में कितना मिलेगा 2x² प्लस 2x² प्लस भाई x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 528। तो क्या मिला 2x² प्लस x इक्वल टू 528। ओके, सो नाउ अब क्या करना है भाई, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आखिर किस फॉर्म में होती है? वो होती है ax² + bh + c = 0। लास्ट में क्या आना चाहिए 0। जितना भी कांस्टेंट टर्म है वो सारा LHS साइड आ जाना चाहिए और वो c बन जाएगा। जितना भी कांस्टेंट टर्म है वो LHS साइड आकर क्या बन जाएगा c बन जाएगा और लास्ट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसी फॉर्म में अगर करेंगे तो 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट द equation in the form of quadratic equation. We have to just represent the condition in the form of quadratic equations. तो quadratic equations की फॉर्म में हमने कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। You can take the screenshot of it also. Okay, इससे आप बाद में इसको कर सकें। Otherwise I will provide you the video also of it, so you can complete your work. Now second part, and before starting the second part I want to take the attendance of you all, so just be patient. Abhishek Chauhan and Abhishek Chaurasia to Arpit, all are present, and now from Arpit to Kaushki Shukla, all are present. One student is just left, Kaushki Shukla to Mridul Dubey, Mohit Yadav, and now Mridul Dubey to Rahul Pal, and now Rahul Pal to Srishti Srivastav. Okay, good. And now Srishti Srivastav, Suryansh to Saksham Rajput and Udit Raj. Okay. So just you all have to look the second part of the same question, that is question number 2. Okay. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. What are two positive consecutive integers? Positive consecutive integers कौन से होते हैं? ठीक है ना? Consecutive integers कौन से होते हैं? बहुत बच्चों को ये पता होगा कि consecutive integers कौन से होते हैं। तो देखिए, consecutive means
जस्ट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, और एक के बाद एक अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट कि अगर हमने हमारा पहला इंटीजर x ले लिया, क्या ले लिया x, तो x के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा x प्लस 1। अगर हमारा x फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो x प्लस 1 हमारा सेकेंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1. And now according to the question it is given that the product of these two consecutive positive integers it means we have to multiply both. The product of these two consecutive positive integers is 306. कितना दिया गया है 306 दिया गया है। एंड नाउ मल्टीप्लाई x into x, that is x square plus x equal to 306, ठीक है ना। सो नाउ x square plus x, ये 306 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, कितना हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। एंड नाउ इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमने कंडीशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्लियर? तो इतना कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो। नाउ जस्ट रीड पार्ट नंबर 3। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की मदर जो है वो उससे कितनी बड़ी थी 26 ईयर्स ओल्डर थी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब हम देखते हैं अगर थर्ड पार्ट को देखते हैं, उसके लिए हम कंडीशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होगा जाके वो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी पार्ट नंबर 3, ठीक। तो लेट रोहन्स एज, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता और क्लास ओवर हो जाती है देन यू ऑल हैव टू रिजॉइन इट अगेन, ओके, फॉर जस्ट 2 मिनट्स ओनली। लेट रोहन्स एज बी x years and Rohan's mother age, equal to Rohan's mother is 26 years older than him. So 26 years older than him, it means x plus 26 years. Very simple. उससे ये बोला गया है कि कितनी साल बड़ी है वो 26 ईयर्स ओल्डर है, तो इसका मतलब है कि उनकी मदर की एज जो हो जाएगी वो कितनी होगी x प्लस 26। कितना होगा x प्लस 26 होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। क्योंकि रोहन की एज x थी, उनकी मदर 26 ईयर्स ओल्डर थी, तो x प्लस 26 वो बोला गया है, ये हो जाएगा। नाउ आफ्टर 3 years, और यू कैन से 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब सेम होता है 3 years फ्रॉम नाउ, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। या तो आप आफ्टर 3 years बोल दीजिए, 3 years फ्रॉम नाउ बोल दीजिए, क्लियर, दोनों का मतलब सेम होने वाला है, ठीक। या तो आप बोल दीजिए आफ्टर 3 years या 3 years फ्रॉम नाउ। तो अभी जो है वो रोहन की एज, अभी जो है वो रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज है x years, कितना है x years है, ठीक है। और रोहन्स की मदर्स की जो एज है वो कितनी है x प्लस 26, ठीक है। रोहन्स की मदर्स की एज है x प्लस 26 और रोहन की एज है x years, ठीक है। तो ये तो हमें पहली कंडीशन में गिवन था कि मदर की जो एज है वो x प्लस 26 है। अब 3 years फ्रॉम नाउ, आज से ये प्रेजेंट एज है, ये क्या है रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, ये दोनों की प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। रोहन की प्रेजेंट एज है x years और रोहन्स की मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26 years, क्लियर।
ना आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद रोहन, आफ्टर 3 years रोहन एज, तो पहले अभी रोहन कितने ईयर्स का है? x ईयर्स का है, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? x + 3, x + 3 होगी, तो इट मीन्स x + 3 ईयर्स, YRS मैं लिख रहा हूँ ईयर्स में, शॉर्ट में, ठीक है। अब भाई जब रोहन की एज 3 साल बढ़ गई तो उसकी मदर की एज भी तो 3 साल बढ़ेगी, तो रोहन मदर्स एज, रोहन x + 26 + 3, ओके, जस्ट म्यूट योर माइक के, तो x + 3 + x + 26 + 3, सो x + 26 तो प्रेजेंट एज है, उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x + 29, x + 29 ईयर्स हो जाएगा। नाउ हमको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद जो एज आएगी उसका प्रोडक्ट, प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, 3 साल बाद जो एज आएगी उसका प्रोडक्ट, यानी किसका प्रोडक्ट? x + 3 का प्रोडक्ट एंड x + 29 का प्रोडक्ट, ठीक। तो x + 3 का प्रोडक्ट एंड x + 9 का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x + 3, ये तो रोहन की एज है आफ्टर 3 years, और इंटू x + 29, ये रोहन की मदर की एज है आफ्टर 3 years, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है? 360, ठीक है, 360। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर आई थिंक इतना? तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर देख लीजिए, मैं तुरंत बता दे रहा हूँ आपको। x² + 29x + 3x + 29 × 3, 29 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 27, 3 × 6 और 87 हो जाएगा, ठीक है ना। 87 = 360, ठीक। तो x² + 29 + 3 कितना हो जाएगा? 32x, ओके, 32x एंड प्लस 87 - 360 = 0, ठीक है। तो -73 -73 आएगा, गलत बेटा, 87 है ये, ठीक है, 29 × 3 किया तो 87 आएगा। x² + 32x + 87 - 360, 360 का ट्रांसपोज कर लिया हमने इस साइड, तो कितना बचा? x² + 32x, ओके, माइनस में आएगा, माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि 360 हमारा जो है बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए? 273, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, -273 = 0, और देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो we have completed till here today, and from tomorrow we will start, we will first of all complete the 4th part of question number 2, and then the exercise 4.2 we will start tomorrow. So you all have to join the class again, okay? So for today it's over. Thank you class.